हॅलो स्टुडंट्स, या यूट्यूबच्या माध्यमातून मला अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. विद्यार्थ्याला घरी बसून मोबाईल पाहताना आपल्याला असं नाही वाटलं पाहिजे ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणजे मोबाईलमध्ये तो पूर्ण अभ्यासक्रम असला पाहिजे. त्याला सांगणारे घरी बसून आपल्या विशिष्ट वातावरणात सांगणारे सर असले पाहिजे आणि चांगल्या पद्धतीने तो अभ्यासक्रम पूर्ण झाला पाहिजे. हा हेतू मनात धरून एक चॅप्टर, त्या चॅप्टरवरचे प्रॉब्लेम्स, त्या चॅप्टरवरचं थेरॉटिकल पार्ट आणि कुठल्याही स्तरावरचा आलेला न्यूमरिकल असो की क्वेश्चन असो त्याची तयारी झाली पाहिजे. मी अरुण भांगे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत करतो आणि पुढचा व्हिडिओ स्टार्ट करतो. This is our next type of problem. Problems in changing enthalpy of reaction. There is no particular formula at all. For this problem, there is no particular formula. कोई particular formula यहाँ पर नहीं होता. To solve such type of problem, always problems are coming with respect to organic compound. Means carbon, hydrogen and oxygen containing compounds, carbon compounds are coming. Carbon, hydrogen and oxygen containing carbon compounds are present in this reaction, in this problem. So at first, formation of organic compound. Reaction, one of the reaction, formation of organic compound. In that particular numerical, the first reaction which is formation of organic compound. Second, combustion of that organic compound. Combustion of organic compound. Means the combustion reaction is also present in that particular problem. The reactions are given or you must write the reactions with respect to by taking stoichiometric formula. And the third important part, which is formation of water. Formation of water. This reaction is very important to solve such type of heat of reaction problems by using Hess's law or by using heat of reaction term. By using formation part, combustion part, neutralization part, ionization part, so many types of reactions are there. You must write that type of reaction. The writing practice of reaction means what? आता आम्हाला वॉटरचं फॉर्मेशन लिहायचं आहे. डोक्यात काय ठेवायचं? H2 गॅस प्लस हाफ O2 गॅस which gives H2O liquid. It is formation of water. इलेमेंट, त्याची जी इलेमेंट असतात की नाही, इलेमेंट त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये लिहायचं. स्टॉइकोमेट्री तुम्ही किती लिहा, पूर्णांक लिहा की अपूर्णांक लिहा. यू मस्ट राइट होल नंबर or any type of other half, 1/3, any type of number. It means fractional number is also present in this reaction. Then the fourth part is formation of organic compound, formation of combustion of organic compound, formation of water and formation of CO2.
formation of carbon dioxide gas, C solid plus O2 gas, which gives CO2 gas. These are the one type of problem. यातल्या एका प्रकारच्या प्रॉब्लेम बद्दल बोलतो आहे मी की हे चार प्रकारचे जे प्रॉब्लेम आहेत ना, चार प्रकारचे जे इक्वेशन आहेत ना, हे त्या प्रॉब्लेम मध्ये एक तर तुम्हाला फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विचारतील किंवा कंबशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विचारतील. दोन्हीपैकी एक दिलेलं नसेल व्हॅल्यू. If delta H of this is given, then delta H of this is not given. Formation of water and formation of CO2, these two values are compulsory. मुलांनो लक्षात ठेवा की ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या हिसिस लॉ किंवा हीट ऑफ रिएक्शनचा जो प्रॉब्लेम असतो, हे चार त्यातले पॉइंट्स आहेत. त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा एक तर फॉर्मेशन विचारतील किंवा त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा कंबशन विचारतील किंवा तुम्हाला दोन्हीपैकी एक नाही विचारलं तर हे फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, फॉर्मेशन ऑफ CO2 हे विचारतील. जे विचारतील ते विचारतील. आपल्याकडे हे चार इक्वेशन असणार आहे. प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा ते इक्वेशन असणार आहे. एखादा एक्स्ट्रा ॲडिशनल इक्वेशन आला तर आपण तो लिहू शकतो. एक छोटासा प्रॉब्लेम सुरुवात करूया आपण. तुमच्या लक्षात येईल की हा हिसिस लॉ किंवा हीट ऑफ रिएक्शनचा प्रॉब्लेम. ही चार पॉइंट्स मी पुन्हा पुन्हा आठवण करून देतो. हे फॉर्मेशनचं इक्वेशन असायला पाहिजे. फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज इम्पॉर्टंट. कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन containing. Combustion of organic compound is also important. Whatever it may be, which is given or not, is not important. But these four reactions are major reactions. And with respect to these four reactions, we must apply certain things. We must apply certain formula. We must apply certain clues. The problem is, calculate enthalpy of formation of CH4. Enthalpy of formation of CH4 gas. मी तुमच्या समोर जरी नसलो आणि तुमच्या जवळ आहे, तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता. मी परभणीत राहतो. माझं नाव अरुण भांगे आहे. बऱ्याच दिवसानंतरची सेवा केल्यानंतर अतिशय निवांतपणे या यूट्यूबच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचण्याचा माझा मानस आहे आणि आपण ते घेत आहोत. आपके लिए, सबके लिए खुला है ये मंदिर हमारा. अभी देखो एग्जाम्पल कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 by given data. What is data? Data means equations. C graphite plus O2 gas. C graphite plus O2 gas gives CO2 gas. The first equation is this. Delta H naught, standard enthalpy of this formation of CO2 is given minus 393.5 kilojoule. It is our first equation. H2 gas plus half O2 gas मैंने आपको बताया था. वही दो इक्वेशंस आपके साथ है. It is H2O liquid is to be formed. Formation of 1 mole of H2O liquid. With respect to this, some type of heat is evolved. This amount of heat evolved is 285.8 kilojoule. Then CH4, if formation पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कंबशन भी मिलना चाहिए. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इफ फॉर्मेशन इज देयर, देन यू मस्ट राइट और यू मस्ट लुक आफ्टर दिस, लुक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, व्हिच टाइप ऑफ formation is given or combustion is given. Here combustion is given. CH4 gas plus 2O2 gas, which gives CO2 gas plus 2H2O liquid
This is delta H naught, another delta H naught, minus 890.3 kilojoule. After looking this problem, a student imagine that it is very hard problem. No. त्याला पाहिलं एवढं घाबरायला वाटतं की कसं काय करणार बाबा, इतकी 4 रिएक्शन दिलेले आहेत आणि इथं उत्तर डायरेक्ट कसं काढता येईल. एकदा स्टेप बाय स्टेप लक्षात आलं ना, डायरेक्ट यायला काही चालेल. Enthalpy of formation of CH4, required equation. First write your required equation. Required equation is formation of CH4 means carbon solid, elements present in that H2 gas, carbon and H2 gas reacts with each other which gives CH4 gas. It is our target equation. It is our required equation. It is our target equation or required equation. You must approach towards this target equation. How it is to be approached? Approachment related with this. कुछ तो भी यहाँ पर आपको जुगाड़ करना पड़ेगा. ये इक्वेशन नंबर 1 होता है, इक्वेशन नंबर 2 होता है, इक्वेशन नंबर 3 होता है. इसको आप डेल्टा H1 बोलोगे, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3. You must observe that one side आपको कुछ बनाना पड़ेगा. ये इसके पास पहुंचने के लिए कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ऑब्जर्व करने के बाद जो भी ऑपरेशन ऑफ रिएक्शन के लिए लिख रहे हो डेल्टा H के लिए बाजू में लिखना पड़ेगा और फाइनल रिएक्शन आने के बाद डेल्टा H की वैल्यूज पुटअप करना पड़ेगा. और एक बात, जो भी आपको इक्वेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट Hess's law, application of that Hess's law indicates that or gives that thermochemical equation means equation which shows actual amount of enthalpy change. The change in the enthalpy is written at the totally right side of the equation. This change in the enthalpy delta H1 is important part, delta H2 and delta H3. By using these three equations, thermochemical equations are added, subtracted or multiplied like algebraic equation. Means addition, subtraction and multiplication is an important part. How it is to be added? Observe that equation for carbon. This is one of the equation for carbon plus equation for hydrogen. This is equation for hydrogen. But equation for hydrogen is this. We want H2 into 2. जो भी आपको चाहिए ना, H2 यहाँ पर है ना, तो 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो. ये कार्बन सॉलिड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने आप आ रहा है. One side, you observe this reactant side or product side. You observe this reactant side or product side. It means that equation 1 ऑपरेशन में राइट करूंगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन, इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन. इस इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, वो इक्वेशन के सामने आपको लिखना है डेल्टा H1 प्लस 2 इंटू डेल्टा H2. अभी आप if you are following such type of operation, after this operation whatever it may be equation 4 will be there, उसके सामने ये आना चाहिए. with respect to this उसके सामने ये लिखना है. don't put the values are now values are not important. Now our target equation is important, target equation development is important. So we will write equation 4 with respect to this operation. This C graphite plus O2 gas plus 2 into equation 2 H2 gas plus O2 gas. 1 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 से मल्टीप्लाई किया,
2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड. It is our fourth equation and its delta H is in front of that. Its delta H is in front of that. With respect to this operation, you are writing this equation and in front of this equation delta H1 plus 2 delta H2 was right. And observe, कार्बन सॉलिड मुझे चाहिए क्योंकि रिक्वायर्ड में है. कार्बन ग्राफाइट, कार्बन सॉलिड, सॉलिड की जगह आप ग्राफाइट भी ले सकते हो. कार्बन ग्राफाइट मुझे चाहिए, 2H2 मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए O2. O2 का मतलब होता है 2O2. नीचे के इक्वेशन में आप लिख सकते हो 2O2. ये 2O2 मुझे नहीं चाहिए, CO2 मुझे नहीं चाहिए और ट्वाइस H2O भी नहीं चाहिए. मुझे सामने चाहिए CH4. प्रोडक्ट साइड में CH4 कहाँ है? प्रोडक्ट साइड में CH4 है क्या? प्रोडक्ट साइड में CH4 तो नहीं है. ये है रिएक्टेंट साइड की तरफ CH4. रिएक्टेंट साइड में CH4 है ना, तो हमको प्रोडक्ट साइड में चाहिए ना. तो प्रोडक्ट साइड में चाहिए आपको, रिएक्टेंट साइड में है. तो ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 से माइनस करें तो क्या होता है? लॉजिक यूज करो. ये नहीं चाहिए ना आपको, तो ये भी यहाँ पर भी CO2 गैस 2H2 लिक्विड, CO2 गैस 2H2 लिक्विड, ये भी आपको कैंसिल कर देगा. सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. If equation 4 minus equation 3, if equation 4 subtracted to equation 3, it is to be gone and 2O2 which is also cancelled, 2O2 भी निकल जाएगा. ये राउंड देखो, मैंने राउंड लिखा ना. लॉजिक यूज करना है. इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, रहेगा सिर्फ ये रहेगा तो नेगेटिव में रहेगा, उधर जाके पॉजिटिव होगा. रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, ऑपरेशन इज दिस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3. इक्वेशन लिखने के बाद आपको इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2. ये था ऐसा, ये इक्वेशन 4 का उसके सामने लिखिए माइनस इक्वेशन 3 दैट इज डेल्टा H3. ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे बाय राइटिंग इक्वेशन. यस, इक्वेशन 4 लिखना है मुझे. CH4 गैस, सॉरी C ग्राफाइट प्लस O2 2O2 गैस प्लस 2H2 गैस, ये रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए. माइनस क्या है? इक्वेशन 3 माइनस CH4 माइनस 2O2 माइनस CH4 गैस माइनस 2O2 गैस. पूरे लोग आ गए कि देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 is equal to this much CO2 plus CO2 gas H2 liquid, CO2 gas H2 liquid get cancelled 0. आपको लिखना है तो लिख सकते हो. काही मुलांना असं वाटतं की पूर्ण लिहावं, पूर्ण लिहू शकतो. CO2 गॅस लिहू शकतो, 2H2 लिक्विड लिहू शकतो, मायनस पुन्हा CO2 गॅस पुन्हा 2H2 लिक्विड यांची वजाबाकी आणि मग आलेला 0 समोर ठेवू शकतो. मुलांनो हे 2O2 कॅन्सल होते, राहतं CH4 तिकडे जातं. C रिक्वायर्ड इक्वेशन कडे बघायचं. जसं जसं आपण रिक्वायर्ड इक्वेशन कडे बघायला लागतो आपल्या मनात गाणं सुचायला लागतं. कौन था तू, कहाँ था तू, निकल गया तू, सामने आ गया. ये तो सामने आ गया मैंने. C graphite 2H2 gas CH4 gas. Yes, what is delta H? Delta H value is calculated by putting actual values. अभी तो क्या है, एडिशन करना है. ये दोनों का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. यही तो आंसर है, यही तो प्रॉब्लम है. इसका कैलकुलेशन अभी करेंगे. कैलकुलेशन करने के लिए वैसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है उसकी कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करने के लिए मैं अभी
इतना ऑब्जर्व करो. Yes, observe this, please. Please concentrate and observe. This is an important part for NCERT in 11th and for board in 12th science. Because such type of problems which are coming in NEET also. अभी जो बच्चे नीट के लिए अप्रोच हो रहे हैं उनके लिए भी एक इस टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने मैं लाऊंगा. ये डायरेक्टली बोर्ड में अगर आते होंगे तो इसमें शॉर्ट करके वो नीट में भी आ सकते हैं. तो कैसे आ सकते हैं? 3 इक्वेशन के बजाय 2 इक्वेशन देंगे. आपको मालूम है उसको रिवर्स करने के बाद साइन ऑफ डेल्टा एच चेंज होता है. सब्ट्रैक्ट करो या रिवर्स करके ऐड करो, वन एंड द सेम थिंग. कोई रिवर्स करके ऐड करेगा, वन एंड द सेम थिंग. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे सोचना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसका आंसर निकालूंगा. फॉर्मेशन ऑफ CH4 which is very important, how it is to be calculated. Delta H1, value of delta H1 is minus 393.5 plus 2 into minus 285.8 ये आ गया. और माइनस डेल्टा H3 माइनस 890.3 यह है इसका कैलकुलेशन. 2 से मल्टीप्लाई करो. $571.6 प्लस माइनस 393.5 प्लस 890.3. इसका एडिशन करना है. एडिशन करना है. नो आई वोंट गेट अप. कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? अरे भैया सब्ट्रैक्शन है ना. 571.6 माइनस 393.5 सब्ट्रैक्ट करो. बिग वैल्यू स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन लॉग के जैसे नहीं होता. रियल सब्ट्रैक्शन बिग वैल्यू में से लोअर वैल्यू निकालना पड़ेगा. ये 1 आएगा. ये कितना है भैया? 393 पॉइंट है. 11 से 3 चले गए तो 8 6 7 और यहाँ पर कितना आएगा? 178.1. Yes, 178.1 प्लस 890.3. इसको ऐड करना है. 1 प्लस 3 4. ये है 8. अरे भैया 1068.4 किलो जूल इसका आंसर आएगा. ये डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH4. फॉर्मेशन ऑफ CH4 मैंने बोला था आपको. बोर्ड का प्रॉब्लम है सर. कुछ 12वीं के बच्चे अगर वीडियो देखते होंगे तो वो बोलेंगे सर ये बोर्ड का प्रॉब्लम हमने पढ़ा. बेस है बेटा. ये प्रॉब्लम भी बोर्ड का है तो बेस है. इस बेस से जाओगे तो ही आपका सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो फिर क्या करेंगे? चलो फिर एक छोटा सा नीट का प्रॉब्लम है. बहुत बड़ा वीडियो देखने की आदत आपको डालना है क्योंकि उसका टाइम बढ़ने वाला है. ये वीडियो का टाइम बढ़ेगा. 1-1 घंटा 1-1 घंटे तक चलेगा. चाय वाय पिया, खाना बिना खाया कि नहीं? खाना बिना खा के चाय वाय पी के या फिर कुछ खा के मस्त मोबाइल के सामने बैठना है. स्लो करके, या आपको स्लो लगता होगा तो थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ा के भी आपको देखना है और सॉल्व करना है. पॉज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. मैं प्रॉब्लम एक लिखूंगा. ये तो MCQ है भैया. MCQ में इक्वेशन नंबर 1 है HA प्लस OH माइनस which gives H2O प्लस A माइनस प्लस Q1 किलो जूल. सेकेंड इक्वेशन है H प्लस प्लस OH माइनस
which gives H2O plus Q2 किलोजूल। ये इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA निकालो। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन of HA is enthalpy of dissociation of HA is, आंसर्स मेरे पास है Q1 plus Q2। बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरी केमिस्ट्री है। Q1 and D minus Q1 plus Q2। यस, तुमच्याकडे काय आहे, माझ्याकडे हे आहे, माझ्याकडे ते आहे, माझ्याकडे ते आहे, माझ्याकडे ही केमिस्ट्री आहे आणि ही केमिस्ट्री माझ्या सोबत राहणार। ही कोणी काढून घेऊ शकत नाही। मी माझ्या मुलांसाठी ठेवली। सगळे मुलं जे शिकून गेलेत, मोठे झाले आणि जे आता समोर बसलेले आहेत। येस, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इट इज सेकंड इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA। डिसोसिएशन, HA गेट डिसोसिएटेड into H plus plus A minus, ionization किंवा dissociation। ionization, dissociation। dissociation जे ऑलरेडी आयन्स असतात ते सेपरेट होतात, ते dissociation। NaCl चं dissociation, Na plus plus Cl minus। तसे HA H plus plus A minus हे आपला हा रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे। रिक्वायर्ड इक्वेशन तुम्ही म्हणाल सर इथे डेल्टा H नाही दिलेले। where is delta H? yes, ये भैया ये डेल्टा H ही है। ये जो इक्वेशन है ना, A plus B gives C plus D comma delta H is equal to minus Q1 kilojoule। this is written as like this, A plus B gives C plus D plus Q1 kilojoule for balancing purpose। This much amount of heat is evolved ना, वो evolved amount of heat reactant साइड में ऐड करेंगे, फिर ये बैलेंस रिएक्शन होगा। तो आप इसको बोल सकते हो ना भाई डेल्टा H कितना है? ये डेल्टा H माइनस Q1 है। इसका डेल्टा H1 मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटे माइनस Q1 किलोजूल। इसका डेल्टा H मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस Q2 किलोजूल। हेलो, ये डेल्टा H2 माइनस Q2 किलोजूल। ये डेल्टा H के बारे में आप बोल सकते हो सेपरेटली। जब आप डेल्टा H लिखते हो तो ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। ओके, माय रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। ये मुझे चाहिए, ये HA का कन्वर्जन H प्लस ये माइनस में। ये दोनों का क्या करना है? ये दोनों का क्या करना है? HA तो मिल गया। यस, रिएक्टेंट साइड में HA मिल गया। ऑब्जर्वेशन चालू है। रिएक्टेंट साइड में HA मिल गया। यस, प्रोडक्ट साइड में होना H प्लस A माइनस, H प्लस A माइनस। अरे प्रोडक्ट साइड में A माइनस तो है और H प्लस नहीं है। टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड A माइनस इज देयर, वेयर इज H प्लस? H प्लस इज दिस। तो इसको ट्रांसफर अगर करना है तो इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे। Equation number 2 get reversed and added। Equation number 2 reversed and added। In another word, subtracted। Subtraction of equation 1 minus equation 2। Subtraction is there। Subtraction, or your observation is that A minus is your that side and H plus is here in this side। इसको रिवर्स करना है और ऐड करना है। रिवर्स करना और ऐड करना मीन्स 5 साइन रिवर्स करो -5, ऐड करो x -5। अरे रिवर्स करके ऐड करो, इसका मतलब है x और 5 है ना आपके पास, तो x -5 डायरेक्टली बोलो ना। सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। कुछ लोग बोलते हैं उसको रिवर्स करो फिर ऐड करो। रिवर्स करो ऐड करो, ये डबल हो गया ना। सब्ट्रैक्ट करो ना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये अपने आप सब्ट्रैक्ट करो ना। कोरोना नाम से डर लगता है। सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 करोगे और आपका आंसर ढूंढो बिल्कुल ढूंढेंगे। HA
प्लस ओ एच माइनस वही माइनस एच प्लस माइनस ओ एच माइनस, एक साइड 1 2 3 4 लोग आ गए, ये साइड में चलो H2O प्लस ए माइनस, ये लेंगे क्या? नहीं, डेल्टा एच पर ऑपरेट करेंगे, माइनस H2O माइनस Q2 सब्ट्रैक्शन। अरे Q2 क्यों आया भाई? तो Q2 तो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखना है आपको, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। इक्वेशन आने के बाद उसका आंसर यहाँ पे सब चाहिए। H ओ ये नहीं चाहिए बेटा, अरे ये लोग नहीं चाहिए, ये लोग निकल गए। ये क्या होगा फिर? यहाँ पे एच ए चाहिए सिर्फ, एच प्लस को भेजो ना, ये नेगेटिव है उधर भेजो। एच ए गिव्स एच प्लस आ गया इधर, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, आंसर। ये अपने साथी को ढूंढ के लाया, फिर आंसर क्या है? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना है बेटे? माइनस Q1, ये माइनस माइनस Q2, तो ये प्लस Q2 माइनस Q1 अवर आंसर। Q2 माइनस Q1 किधर है भैया? ये Q2 माइनस Q1। It is the problem related with the MCQ part. In this NEET exam, such type of applied questions are coming now. To solve this applied question, you must observe the major problem, solve it and get speed. कितने स्पीड से आप जाओगे, वो स्पीड से जाने के लिए पहले वार्म अप करना पड़ेगा। बोर्ड के प्रॉब्लम छोड़ना एक वार्म अप होता है। यस, किसी की मुस्कुराहट, किसी का कुछ प्रॉब्लम्स का चेहरा मेरे सामने जब आता है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए सर बहुत तकलीफ होती है। प्रॉब्लम्स कम विथ मी, माई सेल्फ अरुण महंगे परभणी। थैंक यू।